And so today I am going to discuss about the mechanical engineering branch. Okay, and what are the career prospects in mechanical engineering and what exactly mechanical engineering is all about. ठीक है, तो मैकेनिकल के बारे में डिस्कस करते हैं. तो in this particular discussion or video I am going to speak about, you may see over here, what is mechanical engineering, what are the subjects which are taught in mechanical engineering, what are the subjects which are teach in mechanical engineering, career prospects, opportunities as a mechanical engineer. If you have done mechanical engineering, then what kind of opportunities you can avail, fields where mechanical engineers are absorbed. What are the various fields in which mechanical engineering can do the job, can start their career, skills acquired by the mechanical engineering students when you pursue mechanical engineering course. Whether you pursue diploma in mechanical engineering, whether you pursue btech in mechanical engineering, so what kind of skill set is you know skill set you acquired during your study. Top private and government companies where mechanical engineers are being absorbed. Okay, so let us see what mechanical engineering is first. So you can see it is one of the oldest and broadest field of engineering. ठीक है, ये सबसे आपका पुराना और सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का फील्ड है ना. यू कांट इमेजिन दिस वर्ल्ड विदाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना. आप अपने आसपास भी देखोगे तो यू विल सी ऑलमोस्ट लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल इंजीनियर्स, है ना. बहुत सारी चीज़ें आपके किसके द्वारा बनाई गई हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा बनाई गई हैं. छोटी मशीन से लेकर आप बड़ा बड़ा जो भी मशीन देखते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन देखते हैं, ऑल आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल इंजीनियर्स. मैकेनिकल इंजीनियर्स डील्स विथ, इसमें क्या क्या आते हैं, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, यूज़ ऑफ मशीन्स, program and those students with the basic understanding of knowledge of how heavy tool and machinery works. So this is about, this is a brief about the mechanical engineering. What mechanical engineers do, they design, construct, uh, and learned about the use of machines, and they also learn how the heavy tools machinery works. A student pursuing mechanical engineering program will acquire the knowledge. What kind of knowledge a student who is pursuing the degree in mechanical engineering will acquire? He or she will acquire the knowledge of automobiles, electric motors, aircraft, and other heavy vehicles. Next, so if I talk about the mechanical engineers, the subject which are being taught. So there are, lot of subjects are being taught in mechanical engineering, but if I talk in a broader sense, we can segregate all the subjects into following types. You can see over here, mechanics. It is the base of the mechanical engineering. Mechanics is the base of mechanical engineering because there are a lot of subjects in mechanical engineering which are based on the concept and principle of mechanics. You might have read about engineering mechanics, applied mechanics, fluid mechanics, kinematics of machine, dynamics of machine. All these subjects are based upon the basic principle of the mechanics. So one must has a good understanding of mechanics, then only he can, go through mechanical engineering in well manner. He can understand mechanical engineering in good perspective. He could have the good understanding of mechanical engineering. Dynamics, you may see this dynamics is a subset of is mechanics only, because what mechanics can be classified into statics and dynamics. So what happens in case of static, when the body is stationary or it is in equilibrium, then we call it as statics. Net force acting on it is zero. And in case of dynamics, the net force is not equals to zero, so body is having certain movement, it is having certain acceleration. So in dynamics we study about the bodies which are in motion. In statics we studied about the body which are at rest or in equilibrium. Next, thermodynamics. It is, there are lot of subjects in the mechanical engineering which are based upon the basic concept of the thermodynamics, like thermodynamic itself. And apart from thermodynamics, there is a subject like applied thermodynamics is there, power plant engineering is there, refrigeration air conditioning systems is there. So in all those subjects, one
do use the concept of the thermodynamics. So these are the called as the subject of thermal. Okay, material science is there. So it is also a branch of mechanical engineering, material science. One studied about the type of materials, how the uh, chemical reactions takes place among the materials, how their crystalline structure changes. So this is something which you studied in material science. CAD CAM is there. So basically all the design is being done. Nowadays design is not done uh, by hands. So design is done on the software. So there are various kind of software which are being used. So this CAD CAM has become one of the most important part of mechanical engineering. So CAD stand you as you know CAD stands for computer aided design, and CAM stand for computer aided manufacturing. Next thing is you can see what kind of skills a मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक्वायर, है ना, किस तरह के स्किल्स आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है वो एक्वायर करता है फॉर कोर मैकेनिकल स्किल्स. कोर मैकेनिकल स्किल्स मींस the skills which are taught to mechanical engineering students, like I mean you will learn the welding, you will learn the refrigeration and air conditioning system. So you will learn about the design of the machines, you will learn about the design of engines. So these are the basically core skills. Decision making skill, this is one of the important skill as far as, because this comes under interpersonal skills. Because when you are working, since see you are studying, you are an engineer, so you will certainly be a part of management team. And it is one of the uh, you know important skill to have the decision making capabilities, because you have to take care of the machines, you have to take care of the people. So you must be good enough in decision making, then only you can perform well, then you can think about the uh, good goodness or welfare of that particular company or that particular organization. If you are not capable of making good decisions, then certainly you will not be able to contribute that organization, that company in the righteous manner. Next is communication skill. It is one of the most important skill as of uh, as far as this time is concerned, है ना? I have read a quote in which it was written that success of the human being, 30% success of the human being depends on the technical skills, and 70% of the success depends on the communication skills. किसी भी व्यक्ति की जो 70% सक्सेस होती है वो कहाँ पे डिपेंड करती है? कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करती है. कम्युनिकेशन स्किल का मतलब द वे वन स्पीक्स, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं. तो कम्युनिकेशन स्किल हैज़ बिकम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्किल. So it is my advice to each and every student to acquire this skill anyhow, because this is very important to have your growth in the future in the coming time. And communication skill, mathematical knowledge. So mathematics is very important, because lot of mathematics is used while in mechanical engineering. So you should be good enough in math if you are pursuing you if you want to pursue your degree diploma in mechanical engineering, because lot of mechanical mathematical concept will you require. And mathematics basically makes your mind, I mean, function in a well manner, because it is like a food to your thinking process, food to your mental health. Innovation is there. Innovation means, see, there is a difference between invention and innovation. Invention means that you are going to create something new. Innovation means you are going to change something which is already in the existence. Whatever is already in existence, whenever you are making some changes in that particular machine, in that particular design, that is called as the innovation. So you can see. Next thing is, what are the career prospects? If you have done BTech in mechanical engineering or diploma in mechanical engineering, so how, from where how you can get the job, or what are the fields where you can go? So there are government jobs are there, private jobs are there. You can go for the higher study, you may become the entrepreneur, because even government is putting a lot of effort to uh, divert or to indulge the graduates
which are coming out from the college to have their own business setup. Even they have started several schemes to provide the financial support to the graduates. So if I talk about the government jobs, in the government jobs, one can have the technical jobs, नॉन टेक्निकल जॉब्स, राइट. जैसे आपने सुना होगा रेलवे में जॉब्स आती हैं, तो रेलवे में आपका टेक्निकल जॉब्स आती हैं, नॉन टेक्निकल जॉब्स आती हैं. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, दैन यू आर एलिजिबल फॉर द टेक्निकल जॉब्स, जैसे एसएससी जेई है, असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट के लिए जॉब्स आती हैं. और आप नॉन टेक्निकल जॉब्स जो होती हैं, क्लर्क और उस तरह की, उसके लिए भी आप eligible हो. then you may go for both technical jobs as well as non technical jobs. रेलवे के अलावा और भी है, जैसे आपका एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो एसएससी टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और नॉन टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है. तो आप दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम में जा सकते हो, है ना. दोनों में से किसी फील्ड में जा सकते हो. ईदर यू कैन ऑप्ट टेक्निकल फील्ड और यू कैन ऑप्ट नॉन टेक्निकल फील्ड. फिर प्राइवेट जॉब्स में आपके हाउ यू कैन गेट द प्राइवेट जॉब्स. ईदर यू कैन गेट प्राइवेट जॉब ऑन कैंपस, है ना. जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे कंपनियाँ विजिट करती हैं, एंड यू हैव टू अपीयर इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ दैट कंपनी, एंड यू कैन बी सिलेक्टेड इन दोज कंपनी. ठीक है. ऑफ कैंपस हर कंपनी का एक अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, तो वो वैकेंसी वगैरह निकालते हैं. इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, और उनकी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि वैकेंसीज़ हैं या नहीं है. तो इस तरह से आप प्राइवेट जॉब्स को एक्वायर कर सकते हो, प्राइवेट जॉब को प्राप्त कर सकते हो. हायर स्टडी इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन. तो यदि आपको हायर स्टडी में जाना है, तो हायर स्टडी में आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए कर सकते हैं. जनरली हायर स्टडी यदि आपको एमटेक करना है, तो यू हैव टू क्वालिफाई गेट, है ना, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज को से एमटेक करने के लिए आपको गेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है. यदि आपको एमबीए करना है, देन यू मे गो फॉर द कैट एग्ज़ाम. गेट एग्ज़ाम आईआईटीज़ कंडक्ट कराते हैं, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. ऐसे कैट होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट. तो ये आपका एमटेक और एमबीए में एडमिशन्स के लिए होते हैं. इंटरप्रेन्योर बन सकते हो आप. अब हायर स्टडी में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं. हायर स्टडी में आपका टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, जैसे गेट है एमटेक के लिए, जीआरई प्लस टॉफिल आईलेट ये होते हैं. बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे आपको फॉरेन इफ यू हैव टू इफ यू वांट टू परस्यू योर एमटेक फ्रॉम द फॉरेन और अब्रॉड, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्वालिफाई 2 एग्ज़ाम्स. वन इज़ द स्किल एग्ज़ाम, ये जो ब्रांच से रिलेटेड होता है जीआरई. दूसरा होता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है. ठीक है. तो इसमें टॉफिल आईलेट ये सारे एग्ज़ाम्स आते हैं. ऐसे ही आपको नॉन टेक्निकल एमबीए बाहर से करना, तो एमबीए के लिए इंडिया में यदि आपको एमबीए करना है, तो उसके लिए कैट है, मैट है, जेट है, आईबी सेट है, स्नैप है. ये सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं, है ना, एमबीए के लिए. यदि आपको अब्रॉड से एमबीए करना है, देन यू हैव टू क्वालिफाई जी मैट. इट इज़ जी मैट, रीड इट एज जी मैट. और टॉफिल. तो यहाँ पर भी 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो वो उस ब्रांच से रिलेटेड, प्लस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट होता है. अब जैसे इफ़ यू वांट टू बिकम द एंटरप्रेन्योर, तो गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड लॉट ऑफ स्कीम्स इन विच दे प्रोवाइड द फंड. यू हैव टू शेयर योर आइडिया विद देम. आपको अपना आइडिया शेयर करना पड़ेगा, और पूरा आपको डिटेल उनको देना पड़ेगा. एंड इफ़ दे फाइंड इट यूजफुल, देन सर्टेनली दे विल गिव यू फंड टू स्टार्ट योर ऑन स्टार्टअप. तो जैसे स्टार्टअप इंडिया है, जैसे इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट किया है. एक है स्कीम आपका सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं सिप ईआईटी. दूसरा स्टार्टअप स्कीम है मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम, जिसको एमजीएस बोलते हैं. स्टार्टअप स्कीम, देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप स्कीम, आई हैव मेंशन्ड हियर जस्ट फ्यू. एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट द डिटेल्स, देन यू हैव टू विजिट द गवर्नमेंट वेबसाइट, एंड स्टार्टअप इंडिया करके वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको सबका डिटेल्स मिल जाएंगे. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये स्कीम है. इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड, ये पॉलिसी है. स्टार्टअप स्कीम मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम. स्कीम टू सपोर्ट आईपीआर अवेयरनेस सेमिनार वर्कशॉप इन ई एंड आईटी सेक्टर. न्यू जेन इनोवेशन इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर, ये बेसिकली आपके जो कॉलेज वगैरह होते हैं वहाँ पे
जो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर है उसको सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट फंडिंग देती है। द वेंचर कैपिटल असिस्टेंट स्कीम, ये सारी स्कीम्स हैं। एंड व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज़ एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो आपका यू कैन गो इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मतलब आप यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ किस किस इंडस्ट्री में आप जा सकते हो आफ्टर कंप्लीट योर बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यू कैन गो इन टू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यू कैन गो इन सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्रीज, पावर सेक्टर, हाइड्रोलिक्स की कंपनी उसमें जा सकते हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जा सकते हैं, ड्रिलिंग माइनिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। यू कैन गो फॉर एरोनॉटिकल इंडस्ट्री, यू कैन गो जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर, टीच में जा सकते हैं। लेकिन टीचिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमटेक परस्यू करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू टीच बीटेक स्टूडेंट देन यू नीड टू pursue MTech. You need to complete your MTech, and if you want to teach the diploma student, then BTech. If you have done BTech, then you are entitled or eligible to teach diploma students. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, ये भी एक अच्छा फील्ड होता है। लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने बीटेक और डिप्लोमा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से किया हो, आप एकेडमिकली बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के फील्ड क्या क्या हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो डिज़ाइन में जा सकते हो, एज अ डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हो। आपको मशीन के कंपोनेंट डिज़ाइन करने पड़ सकते हैं, आपको इंजन्स डिज़ाइन करने पड़ते हैं। तो इट इज़ आल्सो बिग फील्ड। और जनरली अब जो डिज़ाइन वाला पार्ट है वो किस में होता है, सॉफ्टवेयर में होता है। तो यू नीड टू लर्न कैटिया, कैड, प्रो, देयर आर लॉट मैनी सॉफ्टवेयर्स आर देयर विच वन नीड टू लर्न इफ ही और शी वांट टू गो इनटू डिज़ाइन फील्ड। प्रोडक्शन में जा सकते हैं, है ना, प्रोडक्शन में एज अ प्रोडक्शन सुपरवाइजर बन सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हैं। टेस्टिंग एनालिसिस, जैसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है तो वहाँ पे आपका जो भी कंपोनेंट्स बनता है तो उसकी टेस्टिंग होती है कि ये जो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है ना, स्पेसिफाइड इसकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी है या नहीं है। इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले फील्ड में जा सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इंस्टॉलेशन, है ना, जैसे मशीन बन जाती है तो मशीन कस्टमर के पास जाती है तो वहाँ पे आपको जाना पड़ता है और आपको मशीन की कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। उसका मेंटेनेंस, ये भी एक डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि जो मशीन्स एग्जिस्टिंग होती हैं, जो रनिंग मशीन्स होती हैं, उनका मेंटेनेंस, रिपेयर, इस सब की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक फील्ड होता है जहाँ पे आप जा सकते हो। तो बेसिकली इस स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि आपको किस तरह के जॉब मिल सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जैसे मेक इन इंडिया है तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इंडस्ट्री 4.0 ये बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। तो ये बेसिकली एक हॉट एरिया है जिसमें आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स जा सकते हैं। तो इसमें कंप्यूटर एंड मैकेनिकल सिस्टम, इसमें बेसिकली क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो जो सिस्टम्स हैं वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन के इंटरफेयर के बिना वो मशीन्स क्या होंगी, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। और तो वहाँ पे मतलब ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होने के प्लस भी है माइनस भी है। ह्यूमन इंटरफेरेंस कम होगा या ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा तो उससे क्या होगा, कुछ जॉब्स चले जाएंगे। लेकिन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ह्यूमन के पार्ट पे जो मिस्टेक्स होती हैं, दैट मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग दिस इंडस्ट्री 4.0। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, है ना, बिकॉज डीजल व्हीकल्स क्रिएट पॉल्यूशंस, तो डीजल व्हीकल को रिप्लेस करके अभी पेट्रोल इंजन्स आ गए हैं। अब पेट्रोल इंजन को भी धीरे धीरे रिप्लेस करके क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे स्विच कर रहे हैं। तो दिल्ली है, जैसे दिल्ली में तो ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारी इलेक्ट्रिक बसेस स्टार्ट कर दी हैं। तो ये भी एक हॉट एरिया है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए। स्मार्ट एंड कनेक्टेड डिवाइस, 3D प्रिंटिंग, ये भी एक है। बाकी ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी यदि किसी के बारे में स्पेसिफिक आपको डिटेल जानना है देन यू कैन रीड अबाउट दैट। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना, क्योंकि जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उन पे आप डिपेंडेंसी किसी तरह somehow we want to reduce our dependency on the conventional sources of energy because they are they have limited sources,
है ना, दे हैव लिमिटेड स्टोरेज। जो आपके कन्वेंशनल सोर्स हैं, जो से कोल है, पेट्रोलियम है, तो इनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं अनलिमिटेड हो। तो अभी जो एजेंडा चल रहा है वो ये चल रहा है कि सम हाउ वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या होता है कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, कोल है, पेट्रोलियम है, दे क्रिएट लॉट ऑफ पॉल्यूशन। इनकी वजह से बहुत सारा पॉल्यूशन भी होता है, जिसकी वजह से हम क्या है, उनसे हम किधर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, सोलर है, विंड है, ओशियन थर्मल एनर्जी है, इधर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्या क्या इंडस्ट्री हो सकती है? रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री, आपका मेंटेनेंस इंडस्ट्रीज़ हैं, मेकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, मेंटेनेंस वर्क, ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके बाद कौन सी टॉप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंपनी है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जिसमें टाटा ग्रुप है इंडिया में, सीमेंस है, L&T है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, गोदरेज है, किर्लोस्कर है, अशोक लीलैंड है, जनरल मोटर्स है। दीज आर द टॉप मोस्ट प्राइवेट कंपनीज इन द इंडिया एंड एज वेल एज इन द अब्रॉड। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप गवर्नमेंट कंपनी की बात करूँ, BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, HPCL है, DRDO है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन HPCL, हिंदुस्तान पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड, IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NHPC है, नेशनल हाइडल पावर कॉरपोरेशन, गैल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये टॉप गवर्नमेंट कंपनीज है जिसमें आप जॉब पा सकते हो। और जनरली इन सब कंपनीज ने अपना जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो गेट के थ्रू रखा हुआ है। तो यू नीड टू क्वालिफाई द गेट, not only to qualify the gate, but you have also need to get the good rank in gate exam, then only you can enter into these companies. ONGC है आपका, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसरो है। तो these are the few बेस्ट गवर्नमेंट कंपनीज ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड, दिस इज इट। मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है और मुझे लगता है काफ़ी आपको नॉलेज मिला होगा।